हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो हर रोज़ मिलते रहे। Friends, I am Praveen Bulke and I welcome you all on my YouTube channel. So today I am going to start a new chapter of Engineering Mathematics 1 which is based upon the differential equation. So actually the differential equation is a very important topic of calculus and it is not possible to learn all the concept of differential equation within a short period of time. So as I actually show this flow chart, we will discuss only those topic of differential equation which is included in a syllabus of engineering mathematics prescribed by Amravati University. The topic which I will going to explain in next number of lecture are based upon the ordinary differential equation, and here we discuss only those topic which is given, which is shown in this flow chart. So for engineering mathematics 1, this differential equation are distributed into two chapters. The first chapter is based upon the differential equation of first order and first degree, and the second chapter is based upon the differential equation of first order and higher degree. So in differential equation of first order and first degree, here we have to solve the differential equation by various methods, which include the variable separable and reducible to variable separable, differential equation of homogeneous and non-homogeneous, exact and non-exact differential equation, linear and non-linear differential equation, and solution of differential equation by polar transformation. In next chapter, we will discuss the differential equation of first order and first degree. In this chapter, we find the solution of differential equation by various methods such as differential equation soluble for V, differential equation soluble for Y, differential equation soluble for X, differential equation which is in clearest form and reducible to clearest form, and next the application of differential equation to orthogonal trajectory and electrical circuit. So these are all the topic which is covered in a next number of lectures. So today we will going to start the first lesson of this differential equation, that is a differential equation of first order and first degree. So let's start with some basic terminology used in this chapter. That is, first definition is differential equation. So the name of our chapter is differential equation of first order and first degree. So first we will see what is meant by differential equation. So definition is going by an equation which involves a differential coefficient, dependent variable and independent variable is known as a differential equation. And these are the example of differential equation. So if we know the example of differential equation, then how can define the differential equation by using that example? The differential equation means it is nothing but the equation, because equation has a two sides, LHS equal to RHS, therefore it has an equation. So actually यहाँ पे जो equation में dy by dx दिख रहा है आपको, so dy by dx मतलब rate of change of y with respect to x जिसको बोलेंगे हम, so it is called the differential coefficient. ये जो हो गया, ये हो गया हमारा differential coefficient. ये जो y है, y का डेरिवेटिव निकला है किससे? x से, तो y x पे डिपेंड है, तो y जो है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो बचा है x ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, देखो यहां पे x क्या हो गया? x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x अपने मन से आप ले सकते हैं. बाद में यहाँ पे dy बाय dx क्या हो गया? यहाँ पे dy बाय dx है हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और जो इसका डेरिवेटिव निकला है जिसका y का, तो y को क्या बोलेंगे हम? डिपेंडेंट वेरिएबल. तो जिस इक्वेशन में ये तीनों चीजें हो रहेंगी उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसीलिए हमने डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन बता दी कि एन इक्वेशन विच कंटेन और विच इन्वॉल्व्स ऑल द थ्री टर्म्स, दैट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज नोन एज ए differential equation. So these are the example of differential equation. So
there are two types of differential equation. Differential equation are mainly classified into two types. One is called the ordinary differential equation and second is called partially. So first is the example of ordinary differential equation and second is the example of partially, because here the partial डेरिवेटिव इन्वॉल्व. तो दोनों इसमें डिफरेंस क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो z का डेरिवेटिव x से निकल रहा है और z का डेरिवेटिव y से भी निकल रहा, मतलब z जो है वो x और y का फंक्शन है, x और y का फंक्शन है. तो जैसे x और y का फंक्शन है तो x चेंज होगा तो क्या होगा, z चेंज होगा, y चेंज होगा तो भी क्या होगा, z चेंज होगा. मतलब z इस पे दोनों पे क्या है, डिपेंडेंट है. तो z हो गया यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है. और x और y दोनों में कुछ रिलेशन नहीं है, तो x और y दोनों ये क्या हो गए, ये हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो है यहाँ पर, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है. तो डेफिनेशन वही है, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक से ज्यादा है, तो वो डिफरेंस दोनों इसमें वही है. अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, एक अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा तो आपको मिलेगा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन. और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर मोर देन वन इक्वल टू नहीं है, मोर देन वन मतलब एक या एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा, टू और ग्रेटर देन टू, ऐसा अगर होगा तो उससे जो इक्वेशन फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे हम, पार्शियल डेरिवेटिव. तो इसमें हमको पार्शियल डेरिवेटिव का कुछ काम नहीं है, हमारा यूनिट जो है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पे डिपेंड करेगा. तो इसीलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं देखेंगे, वो आपको आगे जाकर अगले सेम में आपको पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ना ही है. तो इस वक्त हम देखेंगे सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है. तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या है, इट इज नॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन. सिर्फ मैंने जो बोला था आपको, विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इक्वेशन में अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनरी, और मोर देन वन है तो उसको क्या बोलेंगे हम, पार्शियल. नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अभी जो ऑर्डर और डिग्री है आपने 11-12 में आपका हुआ है. ऑर्डर मतलब क्या रहता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है इक्वेशन में उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर. सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. जो सबसे ग्रेटर डेरिवेटिव है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर. जैसे कि इस इक्वेशन को देखो आप, तो ये जो डेरिवेटिव है ये डबल डेरिवेटिव है. डबल डेरिवेटिव मतलब क्या बोलेंगे उसको अपन, सेकंड डेरिवेटिव, मतलब सेकंड ऑर्डर. तो ऑर्डर क्या हो गई, टू. डिग्री सब डिपेंड करेगा ऑर्डर पे. तो डिग्री मतलब क्या रहती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है इक्वेशन में उसकी पावर. तो यहां पर द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. जो हाईएस्ट डेरिवेटिव, जैसे कि इसको देखेंगे आप तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ पे 2 है, इसका ऑर्डर जो 2 हो गई, लेकिन इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1. लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स ऑफ फ्रैक्शनल पावर्स. रेडिकल मतलब स्क्वायर रूट, बाद में क्यूब रूट, या पावर रेज़ टू द पावर 1/4, ऐसे पावर नहीं चाहिए. अगर वो ऐसे है तो हमको उसको पहले स्क्वेयरिंग, क्यूब या फोर्थ पावर लेकर कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फ्रैक्शन पावर, ये जो बोला है मैंने. तो ऐसे है तो पहले उसको सॉल्व करके कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सॉल्व होने के बाद ही हम उसकी ऑर्डर या डिग्री लिख सकते हैं. तो अगर ये इक्वेशन आपके पास है तो यहाँ पे देखो, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड ऑर्डर. तो ऑर्डर इसकी 2 हो गई, लेकिन डिग्री क्या रहती है, डिग्री आप इसका भी गलती से पावर लिख सकते हैं, लेकिन डिग्री वही रहती है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है. तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 2. तो ये बेसिक कंसेप्ट है ऑर्डर और डिग्री के बारे में. तो ऑर्डर और डिग्री सिर्फ आपको ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री. तो आपको उसमें से मालूम रहे कि हर प्रॉब्लम में क्या होगा, आपको dy/dx ही मिलेगा क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर है, और उसका पावर 1 ही रहेगा क्योंकि उसकी डिग्री भी फर्स्ट है. तो ये हो गया ऑर्डर और डिग्री के बारे में. नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म क्या होता है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, ये वैल्यू चीजें है, y है, x है, और फिर dy/dx होगा. तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इंटीग्रेशन देना पड़ेगा. तो डेरिवेटिव की रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन. मतलब ऑब्वियस डेरिवेटिव की टर्म का इंटीग्रेशन लेंगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. मतलब आपको सिर्फ
जो वेरिएबल है वो मिलेंगे। तो वेरिएबल कौन से यहाँ पर y है, x है, और इंटीग्रेशन के लेने के बाद प्लस कांस्टेंट क्या आता, कांस्टेंट c, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, x y और c में रहेगा। तो वही वहां पे दिया है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैन बी रिटन एज दिस, वेयर c इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, so our unit name is first order and differential equation of first order and first degree. So there are the several methods to solve the differential equation of first order and first degree, and these methods are listed below. So these are the various methods to solving the differential equation of first order and first degree. So we check the method one by one. First method is variable separable or reducible to variable separable. Second is if the equation is homogeneous or non-homogeneous. Third is differential equation is exact or it may be not exact. Fourth method is linear differential equation or non-linear differential equation. And fifth is the solution of differential equation obtained by using polar coordinate. Polar coordinate मतलब क्या, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. तो इस चैप्टर में हमको ये सभी मेथड पढ़ने हैं कि जिनका यूज करके हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। एक्चुअली इसमें का जो पहला है वेरिएबल सेपरेबल, वो नियर अबाउट सबको मालूम ही होगा, क्योंकि जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था पढ़ना तो वहां पे पहला टॉपिक यही था कि वेरिएबल सेपरेबल कैसे करने हैं, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल इज अ बेसिक वे टू इवैल्यूएट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हर प्रॉब्लम में हमको क्या करना पड़ता है, वेरिएबल सेपरेबल में इक्वेशन लाना ही पड़ेगा। अगर वो वेरिएबल सेपरेबल में आएगा तो ही वो सॉल्व होगा। सो ये पूरे टॉपिक जो है हम एक एक करके देखेंगे अभी। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो मेथड वन, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर आपने नाम देखा होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो नाम से भी आपको पता चलेगा कि क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल आर सेपरेटेड। हमने देखा है जनरल टर्म में कि हमारे पास वेरिएबल कौन से है, एक्स और वाई, और कोएफिशिएंट में क्या है, dy dx है, मतलब x का डेरिवेटिव dx भी है और y का डेरिवेटिव dy भी है। तो अगर किस इक्वेशन में हम x और dx, y और dy इसको अगर सेपरेट कर सकेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि वो प्रॉब्लम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा। अगर आप देखेंगे तो इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे देखो, एफ ऑफ एक्स है, एक्स का फंक्शन है और उसके साथ dx है, और जी ऑफ वाई मतलब y का फंक्शन है और उसके साथ dy है। तो जो x है उसमें y नहीं है और जो y है उसमें x नहीं है, मतलब x में y नहीं होना और y में x नहीं होना, दोनों अलग अलग होना, सेपरेटेड होना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इट इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और इसका सॉल्यूशन लेना है, मतलब क्या करना है आपको, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लेना है, और जब भी इंटीग्रेशन लेंगे तब इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा c। तो बेस्ड अपॉन दैट वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। सो एग्जांपल 1, सॉल्व dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब इंटू e टू द पावर वाई। तो सबसे पहले आपको वो उसका नेचर पता करना होगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल से होगा या नहीं होगा। वेरिएबल सेपरेबल से कब होगा ये, जब x और y की टर्म क्या होगी, अलग अलग हम कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब अलग है, e टू द पावर y अलग है, लेकिन दोनों टर्म अगर कंबाइन देखेंगे तो इसमें x भी नहीं है, x भी है और इसमें y भी है, मतलब मिक्स है। और पहले टर्म में तो पूरा मिक्स ही है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक फार्मूला लगा दिया कि e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, और क्योंकि दूसरे टर्म में भी e टू द पावर y है, तो अगर e टू द पावर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब। तो e टू द पावर y की टर्म सेपरेट हो गई और दूसरी टर्म तो x की है सिर्फ, मतलब x में y नहीं है और y में x नहीं है। तो ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये प्रॉब्लम हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा। तो अभी मुझे क्या करना है, जो मिक्स वेरिएबल है उसको अलग अलग करना है। तो मैं ट्राई करूंगा कि कुछ फार्मूला यूज करके उसको हम अलग कर सकते क्या। तो e टू द पावर x इंटू प्लस वाई क्या लिख सकते हैं हम, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर वाई। सेकंड टर्म एज इट इज, दोनों में e टू द पावर वाई कॉमन है तो उसको कॉमन ले लिया, फिर e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब बचा। अभी ये जो है dy बाई dx, यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे मुझे dy के साथ y चाहिए और dx के साथ x चाहिए। तो अगर आप dx इधर लेकर जाएंगे तो ये पूरी जो टर्म है इसके साथ dx चला जाएगा और बचा है y।
तो y के साथ y चाहिए तो ये टर्म इधर आ जाएंगी। तो ये टर्म अगर हमने इधर शिफ्ट कर दी तो ये हो गया 1/a⁴y, और 1/a⁴y मतलब e⁻⁻y, करेक्ट है। और ये टर्म हमने इधर सेपरेट कर दी, ये टर्म। तो अभी आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये टर्म ऑब्जर्व करो आप, ये टर्म में सिर्फ क्या है, आपको y दिखेगा, इसमें कहीं पर भी x नहीं है। और ये टर्म में सिर्फ x है, इसमें कहीं पर भी y नहीं है। तो ये क्या हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल सेपरेबल। और एक बार आपको इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मिल गए, उसके बाद क्या करना है, हमको उसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल हो गए, इसलिए हम देखेंगे विच इज द इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻y dy, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x प्लस x³। अभी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x का जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर क्या रहता, e⁻x, लिखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे, e⁻x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज a। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो ये सिंपल फार्मूला है। तो e⁻⁻y का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e⁻⁻y अपॉन कोएफिशिएंट y इज -1, तो ये हो गया -e⁻⁻y। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या हो जाएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो अपॉन में 1 आएगा तो वही वैल्यू आएगी। और ये थर्ड है x³, तो x⁻n के इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है, x⁻n + 1 अपॉन n + 1। इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना है तो पावर x से बढ़ेगा और जो पावर में वैल्यू है वो नीचे आएंगी। तो x³ है तो x⁻3 + 1 4 अपॉन 4 + c। बस अगर आपको लगा तो इधर ये टर्म इधर आप शिफ्ट कर सकते हैं तो ये प्लस हो जाएगी, या ये पूरे टर्म इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएंगे। फिर इसको आगे तो हमको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो है ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो वेरिएबल सेपरेबल के प्रॉब्लम जो है बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करना है और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के फार्मूले है, इंटीग्रेशन के फार्मूले है, वो फार्मूले फिर आपको वहां पे यूज करना है। एक और प्रॉब्लम लेंगे हम उसी टाइप का। अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस टर्म। तो अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यू हैव टू सॉल्व द एग्जांपल 3e⁻x tan y dx + 1 - e⁻x x² dy = 0। यहाँ पे अगर देखेंगे 3 चलेगा, आपको कांस्टेंट है, e⁻x भी चलेगा और dx भी चलेगा। यहाँ पर x² और dy चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, x में y नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मुझे tan y नहीं चाहिए, और यहाँ पर ये टर्म नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट कर देता हूँ। तो ये टर्म को मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अभी देखो इधर हमको x चाहिए, 3 चलेगा, e⁻x चलेगा, और यहाँ पे माइनस का एडजस्टमेंट भी कर लिया हमने, माइनस कॉमन लेकर ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 3e⁻x ये इधर लिखा मैंने इंटू dx। अभी ये जो टर्म है ना, ये x के साथ लेकर जाना है, तो ये हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो इधर शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो आपको ये मिलेगा। और इधर बचा है x² dy, और ये tan y इधर है तो ये इधर चला जाएगा, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो अपॉन tan y हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो पूरे y के टर्म है, और यहाँ पर देखेंगे तो सभी x के टर्म है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, y के साथ y है, x के साथ x है, तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन देंगे। तो इंटीग्रेशन देने के बाद आपको ये टर्म मिल जाएगी। अभी इंटीग्रेशन का एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है कि अगर नीचे कोई टर्म है और उसका डेरिवेटिव अगर आपको ऊपर मिलता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो यही रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो tan y, अभी tan x का डेरिवेटिव क्या रहता, sec²x, तो tan y का डेरिवेटिव क्या रहेगा, sec²y। तो नीचे के टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है तो उसका फार्मूला क्या है, लॉग ऑफ दैट टर्म, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ tan y। 3 एज इट इज, e⁻x - 1 का डेरिवेटिव क्या रहेगा, e⁻x ही रहेगा, मतलब नीचे के टर्म का डेरिवेटिव अगेन ऊपर है, वही फार्मूला है। बाद में लॉग का पावर है तो सामने ले सकते और सामने के टर्म पावर में ले सकते, तो ये 3 को हमने पावर में लेकर गए। और log a प्लस log b क्या होगा, log a इंटू b, और log log कैंसल, log log कैंसिल होने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको tan y, ये टर्म अपॉन में चली जाएगी इक्वल टू c। तो ये क्या होगा इस एग्जाम का जनरल सॉल्यूशन। तो इसीलिए वेरिएबल सेपरेबल में तो कुछ आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही एकदम सिंपल प्रॉब्लम रहते हैं और चांसेस भी कम है ये इस टाइप के प्रॉब्लम आने के। ये सब आपको
आगे जाकर इसका यूज गिरेगा आपको कि आगे की प्रॉब्लम वेरिएबल सेपरेबल अगर वो रिड्यूस हो गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल ले लेंगे लास्ट। तो हियर अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल, ये सॉल्व करना है हमको। तो हमने कंसीडर कर दिया ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी इसको और देखेंगे हम कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि यहाँ पर y, यहाँ पे जो टर्म है वो देखना है आपको, dy है, तो dy के साथ मुझे सिर्फ y चाहिए, और यहाँ पर dx है तो dx के साथ मुझे सिर्फ x चाहिए। तो यहाँ पर एक टर्म ज्यादा है x की, यहाँ पे मुझे y चलेगा, मतलब ये अगर इधर होगी तो चलेगा और ये इधर होंगी तो चलेगा। तो ये दो टर्म जो है अनवांटेड, जो आपको नहीं चाहिए, ये सॉरी एक दूसरा लेंगे हम, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ये दो अनवांटेड टर्म है जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, ये दो ब्रैकेट से इसको डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन को, तो देखेंगे हम कुछ मिलेगा तो। सो वी सिंपली डिवाइड दिस इक्वेशन। सो डिवाइड करने के बाद ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो y अपॉन ये अंडर रूट आ जाएगा dy, प्लस इसको डिवाइड करने के बाद अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा x अपॉन दिस dx इक्वल टू 0। देखिए आप, ये सिर्फ y है और ये सिर्फ x है, मतलब वेरिएबल सेपरेबल तो हो गया। अभी वेरिएबल सेपरेबल हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम है हमारा इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन में और एक रिजल्ट है, जैसे हमने पिछला एक रिजल्ट यूज किया था कि नीचे के टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है तो उसका फार्मूला क्या है, लॉग है। दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसका पावर n है और उसका डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट है, तो इसका आंसर होगा पावर इज इंक्रीजेस बाय 1। पावर कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में चाहिए आपको, पावर कुछ भी होगा। अभी देखो यहाँ पे जो टर्म है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया, बराबर है। और अगर अंदर की टर्म देखेंगे आप 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, -2y, लेकिन हमारे पास क्या है, y है सिर्फ। वैसे यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, -2x, हमारे पास क्या है x, मतलब -2 की वहां पे कमी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 0 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 0। तो ये मिल जाएगा आपको। इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, -2 इंटू दिस इक्वेशन, ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा, और 0 इंटू -2 मतलब मिल जाएगा आपको 0। अभी इसके बाद ये जो टर्म है आपको ये ऊपर चाहिए, इस फार्मूला अगर मुझे लगाना है, तो जो अंदर की टर्म है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर भी जो अंदर की टर्म है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन दोनों टर्म मुझे चाहिए ऊपर। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट मतलब कितना पावर, 1/2, और ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो गया, -1/2। और ये फार्मूला का यूज करके क्या बोल सकते हैं हम, अगर कोई फंक्शन का पावर है और उसका डेरिवेटिव है, तो इसका पावर -1/2 और इसका डेरिवेटिव ये हो गया, इसका पावर -1/2 और इसका डेरिवेटिव भी ये हो गया। तो ये रिजल्ट हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है कि फंक्शन का पावर 1 से इंक्रीज होगा, तो फंक्शन क्या है हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर, उसका पावर कितना होगा, ऊपर जाएगा तो -1/2, और 1 से इंक्रीज करना है तो -1/2 + 1, वही वैल्यू नीचे आएगी, -1/2 + 1। वैसे यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, -1/2, तो -1/2 + 1, -1/2 + 1, तो -1/2 + 1 मतलब 1/2, 1/2 मतलब रूट, -1/2 + 1 मतलब 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, मतलब ये रूट हो गया, ये भी 1/2 हो जाएगा, तो ये भी रूट हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 1/2, 1/2, तो ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2, और यहाँ पर भी 2, बस हो गया सॉल्व, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसका यूज करके। सिर्फ जो फार्मूले में यहाँ पे लिखता हूँ वो फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम के लिए जो फार्मूला है वो मैंने साइड में लिखा है, तो कम से कम आप उतने फार्मूले भी याद करेंगे तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम में वो यूज होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है एक्सरसाइज के लिए, आप इसको कर सकते हैं। और मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये एग्जाम्पल मतलब अगर आए इस टॉपिक के तो ये आ सकते हैं, ये एग्जाम्पल है और इसका आंसर भी यहाँ पे मैंने दिए है। तो फॉर एक्सरसाइज वी कैन ट्राई दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।